Hello students, today we are going to study about In the Bazaars of Hyderabad, which is written by Sarojini Naidu. Sarojini Naidu was born on 13th of Feb 1879 and she died on 2nd of March 1949. To understand the context for writing this poem, you first need to know that Sarojini Naidu was a major political figure in the Indian freedom movement in the first half of the 20th century. She was the president of the Indian National Congress and the first woman governor in India. Okay? And as for the context, the poem was written as a part of the Swadeshi movement. During that freedom movement, the Indians decided to boycott European merchandise and use the Indian products instead. Through the poem In the Bazaars of Hyderabad, Sarojini wanted to convey the message that India is rich in traditions and they don't need the foreign products. So she goes on to give a picture of a bazaar where traditional Indian products are ruling. ओके, इट मीन्स सरोजनी नायडू जो हैं वो हमें ये मैसेज दे रही हैं कि हमें कोई भी प्रोडक्ट फॉरेन से खरीदने की ज़रूरत नहीं है, हमारे इंडिया के बाज़ार में सब कुछ अवेलेबल है। सरोजनी नायडू ने बाज़ार्स ऑफ हैदराबाद इसलिए चूज़ किया अपनी पोम लिखने के लिए बिकॉज शी वॉज ऑल्सो born in Hyderabad. And the poem is in the form of questions and answers. The poet asked the questions and the merchants answered them. ठीक है, इस पोम में हम क्या देखेंगे कि सरोजनी जी जो हैं वो मर्चेंट से, जो शॉपकीपर्स हैं, उनसे कुछ क्वेश्चंस पूछ रही हैं और वो उनको आंसर्स कर रहे हैं. Through this technique, she makes the picture of the bazaar visible to us. The poem contains 5 stanzas of 6 lines each. It follows a unique rhyme scheme. ठीक है, राइमिंग स्कीम आप लोग को मालूम है, तो इस पोम में हम बहुत ही सुंदर राइमिंग स्कीम देखेंगे where the second, fourth and sixth line in each stanza are rhyming. The third and fifth lines are also rhyming. The last stanza is a slight exception though. So the general scheme is AB, CB, CB. And it is followed by. So in this poem, the poet talks about the products offered in the old bazaars of Hyderabad. The sights, smells and sounds of the different items being sold come together in vivid images. So let's start the poem. First stanza is, what do you sell, O ye merchants? Richly your wares are displayed, turbans of crimson and silver, tunics of purple brocade, mirrors with panels of amber, daggers with handle of jade. इस स्टेंजा में सरोजनी जी क्वेश्चंस पूछ रही हैं मर्चेंट से. वो पूछ रही हैं कि सरोजनी जी मर्चेंट से बोल रही हैं कि आपने अपने शॉप में कौन कौन से प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले कर रखा है, कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपने इतनी नाइसली तरीके से अपने पूरे शॉप में उसको डेकोरेट कर रखा है, उसको डिस्प्ले कर रखा है. तो मर्चेंट का क्या रिप्लाई आता है कि हम लोग क्रिम्सन मीन्स डीप रेड कलर के और सिल्वर कलर के टर्बन्स बेच रहे हैं अपनी शॉप में, पर्पल ब्रोकेड ट्यूनिक्स बेच रहे हैं और मिरर्स, जो बहुत बड़े बड़े मिरर्स होते हैं, शीशे होते हैं जिसमें चारों तरफ से एम्बर वर्क किया होता है, उसका जो फ्रेम होता है वो पूरा एम्बर वर्क से किया हुआ है, बोलते हैं हम उस टाइप के मिरर्स बेच रहे हैं. एंड डैगर्स विद हैंडल्स मेड ऑफ जेड, बोलते हैं और हमारे पास छोटे छोटे डैगर्स मीन्स नाइफ, और यू कैन से दैट नाइफ विच वी कैन यूज एज अ वेपन. ठीक है, हम बोलते हैं वो बेच रहे हैं जिसके जो हैंडल्स हैं उसके ऊपर ग्रीन और ब्लूइश कलर के बहुत प्यारे प्यारे और कॉस्टली स्टोन्स लगे हुए हैं. नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा. व्हाट डू यू वेव, ओ ये वेंडर्स, saffron and lentil and rice.
What do you grind, O ye maidens? Sandalwood, henna, and spice. What do you call, O ye peddlers? Chessmen and ivory dice. Now the poet begins the questions to the next वेंडर्स, मेडन्स एंड पेडलर्स. ठीक है, जो पोइट है वो अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन करती हैं किससे? वेंडर से. वेंडर और पेडलर्स ये सब क्या है? सेल्समैन. और मेडन किसे बोलते हैं? जो अनमैरिड गर्ल्स होती हैं. तो उनका नेक्स्ट क्वेश्चन था वेंडर से कि आप अपने शॉप में क्या चीज़ है जिसको आप वेट कर करके आप उसको सेल कर रहे हो. तो वहाँ से आंसर आता है कि सेफ्रॉन एंड लेंटिल एंड राइस. मीन्स हमारे पास महंगे से महंगे सेफ्रॉन भी हैं और हमारे पास लेंटिल. लेंटिल मीन्स पल्सेस, दालें. वो बोलते हैं हमारे पास पल्सेस भी हैं और राइस भी है. मीन्स नॉर्मल से नॉर्मल रेट वाली चीज़ें भी हम बेच रहे हैं और जो महंगी से महंगी चीज़ें हैं सेफ्रॉन वो भी हम हमारी शॉप में बेच रहे हैं. फिर the poet then asked the maiden girls, means जो unmarried girls हैं वो वहाँ पे बैठ के कुछ ग्राइंड कर रही हैं. तो उनसे पूछती हैं कि आप लोग क्या ग्राइंड कर रहे हो, आप लोग क्या पीस रहे हो. तो वहाँ से आंसर आता है कि हम सैंडलवुड, हीना और स्पाइसेस को ग्राइंड कर रही हैं. मीन्स महंगे से महंगा हम सैंडलवुड भी बेच रहे हैं, उसको हम ग्राइंड कर रहे हैं. और हीना मीन्स मेहंदी भी हम पीस रहे हैं और स्पाइसेस मीन्स मसाले भी हम हमारी शॉप में ग्राइंड करके बेच रहे हैं. यहाँ पे सरोजनी नायडू जी कंपेयर कर रही हैं कि एक ही बाज़ार है बट उसमें महंगी से महंगी चीज़ें भी बिक रही हैं. मीन्स कॉस्टली से कॉस्टली चीज़ भी बिक रही है और बहुत ही नॉमिनल रेट में बेची जाने वाली चीज़ें भी उसी बाज़ार में बेची जा रही हैं. अब नेक्स्ट क्वेश्चन उनका पैडलर से था. पैडलर्स कौन होता है? जो फेरी वाले होते हैं. उनसे वो लोग पूछ रहे हैं कि आप क्या बेच रहे हो. तो वहाँ से आवाज़ आए कि हम चेसमैन बेच रहे हैं एंड आइवरी डाइस. चेसमैन मीन्स चेस. ठीक है, जो कि पहले ये पोएम आपको मालूम है 20th सेंचुरी में लिखी गई थी, फर्स्ट हाफ 20th सेंचुरी में, जिसमें कि ये माना जाता था कि जो चेस वाले गेम है वो बड़े बड़े जो लोग हैं, जो अमीर लोग होते हैं, वो गेम खेलते थे. तो वो बोलते हैं कि हम हमारी शॉप में महंगे से महंगा हमने एक चेस भी रखा हुआ है, वो हम बेच रहे हैं. और हम हाथी दांत से, उस टाइम इलीगल माना जाता था हाथी के दांतों से बनी हुई कोई चीज़ों को बेचना. तो बोलते हैं हम आइवरी डाइस भी, मतलब जो हाथी के दांत से जो डाइस बनी हुई है हम वो भी हमारे मतलब शॉप में हमने रखा है और हम उसको भी बेच रहे हैं. ठीक है, नाउ मूव टू नेक्स्ट स्टेंजा. What do you make, O ye goldsmiths? Wristlet and anklet and ring, bells for the feet of blue pigeons, frail as a dragonfly's wing, girdles of gold for dancers, scabbards of gold for the king. Now the poet asked from the goldsmith. ठीक है, जैसे ही वो थोड़ा सा और आगे बढ़ी शॉप में तो सामने उनको गोल्डस्मिथ की शॉप नज़र आई. उन्होंने उनसे पूछा कि आप अपनी शॉप में क्या क्या बना रहे हो. आप सुनार हो, आप गोल्डस्मिथ हो, आपने अपनी शॉप में क्या क्या बनाया है बेचने के लिए. तो वहाँ से आंसर आता है कि हम रिस्टलेट, एंकलेट और रिंग ये चीज़ें हम बना रहे हैं. रिस्टलेट मीन्स ब्रेसलेट, जो हम हमारे हाथों में पहनते हैं, कड़े या ब्रेसलेट बोलते हैं, हम इस टाइप की चीज़ें बना रहे हैं. एंकलेट मीन्स पायल, बोलते हैं हम पैरों में पहनने के लिए चांदी की पायल बना रहे हैं. और हमारे पास रिंग्स भी हैं, सोने चांदी की दोनों टाइप की हमारे पास रिंग्स भी हैं. तो हम हमारी शॉप में ये सारी चीज़ें बेच रहे हैं. और हमने पिजन के पैरों में बांधने के लिए, जो ब्लू कलर के पिजन्स होते हैं उनके पैरों में बांधने के लिए हमने बहुत डेलिकेट टाइप के बेल्ट्स भी बनाए हैं, जो कि इतने ज़्यादा डेलिकेट हैं जैसे कि ड्रैगन फ्लाई के विंग्स होते हैं. ड्रैगन फ्लाई, आई थिंक यू ऑल हैव सीन कि बारिश के मौसम में जो कीड़े आते हैं, जो ड्रैगन फ्लाइज होते हैं, वो आप लोगों ने देखे होंगे. उनके विंग्स बहुत ज़्यादा डेलिकेट होते हैं, जैसे ही आप उसको टच करोगे वो टूट के गिर जाते हैं. तो बोलते हैं इस टाइप के इतने पतले पतले हमने
पैरों में बांधने के लिए हमने बेल्ट्स भी बनाए हैं, और साथ में हम डांसर्स की कमर में बांधने के लिए बेल्ट भी हमारे पास है। जब डांसर्स डांस करती हैं तो वो जो अपने कमर में बेल्ट बांधती हैं, सोने की बेल्ट या चांदी की बेल्ट, उस टाइप की भी चीज़ें हमने हमारी शॉप में रखी हुई हैं। और हमने राजा की तलवार रखने के लिए, उसके लिए जो म्यान होती है, जो कवर होता है तलवार का, वो भी हमने बनाया हुआ है, वो भी हमने हमारी शॉप में सेल करने के लिए रखा हुआ है। मीन्स हियर ऑल्सो सरोजिनी नायडू इज सेइंग कि एक ही बाजार है हैदराबाद में, जो इतनी बड़ी बाजार लगी है उसमें देखिए कंपैरिजन कितना अच्छा किया है, कितना ब्यूटीफुली किया है कि उसी में महंगी से महंगी सोने की चीज़ें भी बिक रही हैं, और जो चांदी है उससे भी बने हुए प्रोडक्ट्स उन्होंने अपनी शॉप में रखे हुए हैं बेचने के लिए। ओके, सो What do you cry, O ye fruitmen? Citron, pomegranate and plum. What do you play, O musicians? Sitar, sarangi and drum. What do you chant, O musician? Spells for aeon to come. Now the poet asked from the fruitmen. Okay, उन्होंने next question fruitmen से किया कि what fruits are they selling? She was asking कि आप कौन कौन से fruits हैं जो आप बेच रहे हो अपनी शॉप पे। द आंसर्स कम कि हम सिट्रन, पोमग्रेनेट एंड प्लम जैसी फ्रूट्स अपने शॉप पे बेच रहे हैं। सिट्रॉन मीन्स जो खट्टे फ्रूट्स होते हैं, यू कैन से नींबू, संतरे, ठीक है, ऑरेंजेस, लेमन्स, इस टाइप के जो सिट्रॉन वाले मतलब फ्रूट्स हैं वो हम हमारी शॉप पे बेच रहे हैं। हम पोमग्रेनेट बेच रहे हैं, मीन्स अनार बेच रहे हैं, और प्लम मीन्स आलू बुखारा। इस टाइप की हम सारी चीज़ें, महंगी सस्ती चीज़ें, सारे फ्रूट्स जो है वो मेरे जो शॉप है उस पे मैं बेच रहा हूँ। नाउ एज द पोएट आस्क्ड द म्यूजिशियन कि व्हाट इंस्ट्रूमेंट्स दे आर प्ले, कि आप कौन कौन से इंस्ट्रूमेंट्स को प्ले कर रहे हो अपनी शॉप पे। तो उनका रिप्लाई था कि हम सितार, सारंगी और ड्रम को प्ले कर रहे हैं, हम वो बजा रहे हैं और फिर हम उसको बेचेंगे। जो भी इंटरेस्टेड पर्सन होगा वो आके हमसे ये सारी चीज़ें खरीद सकता है। आफ्टर दैट पोएट गोज टू द म्यूजिशियन एंड आस्क देम व्हाट दे आर चैंटिंग। उन्होंने बोला कि आप क्या चीज़ चैंट कर रहे हो, आप क्या चीज़ है जो आप अपने मन ही मन में बोल रहे हो, आप बुदबुदा रहे हो, आप कौन से ऐसे मंत्र है जिसका आप उच्चारण कर रहे हो। तो वहाँ से क्या आंसर आता है कि मैं कुछ ऐसी चीज़ें बोल रहा हूँ जो हमें आगे आने वाले टाइम में, मीन्स जो हमारा फ्यूचर है उसमें हमको वो चीज़ें काम आए। मैं कुछ ऐसे मंत्रों का उच्चारण कर रहा हूँ जो हमें बहुत टाइम तक हमारे साथ रहे और हमें हेल्प करे। मैं ऐसी चीज़ों को बोल रहा हूँ। नाउ लेट्स सी द लास्ट स्टैंजा ऑफ द पोम। What do you weave, O ye flower girls, with tassels of azure and red, crowns for the brow of a bridegroom, chaplets of garland his bed, shades of white blossoms, new garnered to perfume the sleep of the dead. In the last stanza of the poem, the poet asked the flower girls what they are weaving with the azure, means deep blue and red tassels. Tassels means जो फूलों की कलियां होती हैं, ठीक है। उन्होंने बोला कि आप डीप ब्लू कलर के और रेड कलर के जो धागे हैं, जो फ्लावर्स हैं, और जो इतने प्यारे प्यारे आपके पास फूलों की कलियां पड़ी हैं, इससे आप क्या चीज़ है जो आप उससे बना रहे हो। द फ्लावर गर्ल्स आर मेकिंग गार्लैंड्स फॉर द ब्राइड। तो वहाँ से आंसर आता है कि हम ब्राइड के लिए और ब्राइड ग्रूम के लिए, मीन्स दूल्हा और दुल्हन के गले में पहनने के लिए हम माला बना रहे हैं, और जो दूल्हा होता है उसके लिए हम सहरा जो है वो बुन रही हैं। और उन्होंने कहा कि ये जो फ्लावर है, देखो इसका कितना अच्छे से डिस्क्रिप्शन दिया है सरोजिनी नायडू ने, कि जो फ्लावर होता है वो एक ऐसी चीज़ है जो हमारे सबसे हैप्पीस्ट मोमेंट में भी हमको काम आती है। और आई थिंक जो हमारे लाइफ का सबसे सैड टाइम होता है, जब हमारी डेथ होती है, तो उसके ऊपर जो शीट बिछाते हैं, जो फूलों की माला चढ़ाते हैं और जो फूल डालते हैं डेड बॉडी के ऊपर, उसके लिए भी फ्लावर्स ही काम आते हैं, ठीक है। तो उन्होंने बहुत ही अच्छा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है कि
जो फ्लावर गर्ल्स हैं वो फूलों की माला बना रही हैं दूल्हा दुल्हन के गले में पहनने के लिए। उनके जब उनकी मैरिज होगी तो उनके बेड के ऊपर उसको डेकोरेट करने के लिए और दूल्हे के सेहरे के लिए उन्होंने फूलों से माला बना रखी है। और वहीं दूसरी जगह पे उन्होंने कुछ वाइट कलर के फ्लावर्स हैं जिससे उन्होंने एक बहुत बड़ी शीट बनाई है। मीन्स पूरे फूलों को आपस में वीव करके उन्होंने बहुत बड़ी एक शीट बनाई है जो कि किसी डेड बॉडी के ऊपर चढ़ाने के लिए काम आ सकती है। Thus, the poet Sarojini Naidu represents an Indian market to give us a sense of the rich Indian heritage. The poem was her protest against the European product and an appreciation of our own goods. Okay, so I think you understood this poem very well. Stay safe, stay home. Thank you.